Okay, so yesterday we have seen the coding, MATLAB coding for least cost method, and one problem we solved also. I again go to my MATLAB account where further two different methods and programming for the same I solved over here. So next method we are going to discuss is the northwest corner method. As we know, that method is very easy and it starts from the northwest corner of the cost matrix, and we are going to allocate once again the basic feasible solution step by step, considering all the aspects yesterday also we discussed. So yesterday हमने क्या discuss किया था? If I'm having any kind of transportation problem, it has two types, right? Then we check out the BFS, basic feasible solution. कितने होने चाहिए? M plus N minus 1. What is that? M is, these are the number of rows, and what is N? N is the number of columns. So instead of rows and columns, you can remember this M as this resource sources, correct, and N as the destinations or demand. Then balanced and unbalanced problem that we can consider over here. If basic feasible solution is less than M plus N minus 1, then the solution is said to be degenerate, or else it will be said as the non-degenerate solution. So all that aspects we are knowing. Now here we'll directly check out first of all whether it is balanced or not, and we'll just apply here the northwest corner method. So this is 3 plus 9 12 plus 6 18, and here we are having the sum as 48, and here we'll cross check. This is 7 plus 4 11 12 12 plus 6 18 plus 1, and यहाँ पर 48. So I'm having the supply column sum as 48 and demand column sum as 48. So problem is balanced and I can apply northwest corner method over here. So let me apply from the northwest corner, means the cell 1 1, or let me draw first of all here the number of cells. This is 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3, 2 comma 4. This is 3 comma 1, 3 comma 2, 3 comma 3, and this is 3 comma 4. So ये है आपका कॉस्ट मैट्रिक्स का allocation का या पोजीशंस का इंडेक्स. सो इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सी है? ये. वाई सो? बिकॉज जनरली व्हेन वी टॉक द थिंग्स ऑन द पेपर, this side we always consider as the north, right? So definitely this will become south, this becomes east, and this becomes west. So northwest corner means यहाँ से मुझे start करना होगा, right? And so the position 1 1 will be our most northwest position, and then onwards we'll keep the track to move our allocations from northwest corner to southeast corner, so towards this side. So most probably if we could look into, ये हमें principal diagonal elements या उसके पास वाले diagonals के form में मिलती है. Means I can have the tri-diagonal shape over here. Means यहाँ पर आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर allocation ज़्यादा आने के chances है. Alright, so that we can remember here. And now let us allocate step by step. Now at this position I have to allocate first of all this position 1 1. यहाँ पे है 14, but 14 के across supply है हमारे पास 30 and demand is 7. So least out of that we have to allocate over here. So I'll allocate here. This is 7. So यहाँ पे रहेगा 0. This is 13 minus 7 is 6. Am I right? And now as we are having 0 here, the demand first place की demand fulfill हो गई है. So further sources I can exclude with the cost matrix because the demand is fulfilled. Now I have to move towards next. So हम north west से south east की तरफ कैसे जाते हैं? Not correctly diagonally we'll move on. We just move on from 1 1 position to next position. हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ पर, 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 ऐसे, right? Or we can move in this way 1 2 3 4 in this way.
Now there is no sequence, we can go in menu, but from this 1 position now I cannot go to downward direction, so I have to move left, right. So 56 is the member, right, and now I have to choose from the 6 and 14 the least value. So इस पर हम 6 allocate कर सकते, the least value यहाँ पर बचेगा 0 and here I'll get 8. Now as we are having 0 over here, the rest of 2 members of this particular row I will exclude, because now my entire resource capacity is fulfilled over here. Now I have only source to go downwards in downward direction, correct. Now I'll choose this particular cell to allocate the minimum value. Out of 8 and 19 I will allocate here 8, so here it will remain 0, here it will remain 9, sorry it's 11, it's 11 here, correct. So again, as we are having 0 over here, this particular value or cell or position will not included in the further things. So I'm having the option to move in this direction, right. So I got this position, it's 2 3, right, and here we are having 21, and to this cost matrix will allocate the least value. So out of 11 and 21 will allocate 11 here, so over here it will remain 0, यहाँ पर बचेगा 10, and we are allocating this 11 value over here. Again, as we are having 0 here, this value will not take into the consideration, we are not going to take into consideration. So we are having only option to move in this direction. So 71, and here we can allocate a list out of this 10 and 16. So I'll allocate 10 here, here it will remain 0, here it will remain 6. And as you move from northwest corner to southeast corner, the last cell allocations will give you the similar values if it is balanced problem, right. So as it is balanced problem, here I can have the value from either from the row or from the column as 6 only, and at both of the places now will remain 0. So supply wala column and demand wali row हमें पूरी 0 मिल गई. Now our problem completed over here. And now I'll just check out that what positions I can allocate here. 1 1 position, this is 1 2, then 2 2, then 2 3, then this is 3 3, and this is 3 4. So इसके corresponding हमें cost matrix की value क्या मिली है, 14 56 35 21 71 and 63, and the decision variable values we could obtain as 7 6 8 11 10 and 6. So my allocation completed, and now let us check out how many number of basic feasible solutions we could obtain. 1 at this position, 2 3 4 5 and 6. So basic feasible solutions are 6, and that is equal to 3 plus 4 minus 1, that is 7 minus 1. So basic feasible solution are same, and here we can have the non-degenerate solution, correct. And that solution now you can write down as the initial basic feasible solution by NWCM method, and that solution is 7 into 14 plus 6 into 56 plus 8 into 35 plus, then this is 11 into 21. I hope that's 11 into 21, right. 11 into 21. Next is 10 into 71, and further value we are having is 6 into 63, I'm sorry, and that will represent our basic feasible solution. Let us calculate that. I have calci with me, or you can also guide me to write down each of the term. This is 7 into 14, this is 98 plus 56 into 6 336 plus this is 35 into 8 280 plus this is 221 plus this is 710 plus this is 63 into 6 378, and now let us add all that. So this is 710 plus 221 plus
280 plus this is 336 plus 98. So I'm having the total sum as this is 2023. And now we are going to form we are going to construct a programming in MATLAB to solve this particular problem. Now what logic we are going to apply? We are starting from the northwest corner to the southeast corner we are heading, and we are moving through the positions which will be decided by the numbers we are having on the supply column and in the demand row. Am I right? So with that we will set our logic and we'll solve this problem around. So let us get back to this particular MATLAB window, and again here I have defined the problem or the coding in terms of the number of stages. So I will not explain here, this is our initial part. Right, then first phase, so we have to enroll our cost matrix, then A matrix as the supply wala column and B matrix as the demand wali row. So please remember that, or I'll just write down here in terms of this is supply column and second is, here I can put down, this is demand row. Correct? So this is your input, and for every problem this input will change. Second thing I have to verify is whether the problem is unbalanced or balanced. Exactly in similar way yesterday we have defined, we have to write down this coding. Correct? If our sum of the column is less than sum of the row, then what I have to add is row, and if sum of B is less than sum of A, then I have to add column. So that coding here we included, so I will not elaborate that particular coding again. Correct? So हमारे लिए मेन लॉजिक क्या है कि जो कॉस्ट मैट्रिक के एलोकेशंस करते हैं हम वैल्यूज़ के, वो हमें कैसे करने हैं. नाउ द फर्दर थिंग, दिस x we are assigning as zeros equivalent to the size of the cost. तो ये हमारा blank solution है with all zero entries, and we are upgrading that with the NWCM method. Then we are finding out, or let me run this entirely. Okay, so here I can show you that how that x will look like. Yes, so see the problem. So given problem here you can consider as it's balanced. ये phrase हमारी properly print हो चुकी है as we have coded that. Then next to that we are assigning our x vector or matrix of our decision variables in terms of all zeros at all positions of the cost matrix, and step by step we'll upgrade that. So यहाँ पर हमें optimized solution मिल रहा है. Then we are defining the size of our cost matrix. So m will be equal to 3, correct, and then n will be equal to 4. So with respect to the identification of m and n, now I am going to get my BFS, so basic feasible solutions are 6 in number, correct, and then onwards our entire coding for NWCM will start over here, correct. Now with what we are starting that coding with I is equal to 1 and j is equal to 1. That means we are having this particular part to consider first. So यहाँ पर जो भी number होगा, जो भी member होगा, with that we are going to start. This is the northwest corner of our cost matrix. So I is equal to 1, comma j is equal to 1 के साथ start कर रहे हैं, and we are taking one variable to improve, that L is equal to 0, and we are writing down our logic in terms of the while loop, right? While certain conditions are satisfying, that loop will be executed, else it will break. Okay, so let us start with the simplification. While L is less than BFS, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जीरो, L is equal to 0 कंसिडर किया है हमने initially, we don't have any kind of solution over here, and as L is less than BFS, this particular if else statement will get encountered or run हो जाएगा ये particular statement. If A of I
इज लेस देन और इक्वल टू बी ऑफ जे। आपका आई क्या है 1, जे क्या है 1। तो अगर आपके ए वाले कॉलम में मीन्स सप्लाई वाले कॉलम में एंड डिमांड वाले रो में जो नंबर्स है 1,1 के अक्रॉस मीन्स यहाँ पर 1,1 के अक्रॉस यहाँ पर था 7 एंड यहाँ पर था 13, दोनों में से लीस्ट कौन सा है ये हमें चेक करना है। सो व्हाट वी आर चेकिंग आउट, वेदर योर ए ऑफ आई लेस देन और इक्वल टू बी ऑफ जे और नॉट। इफ सो द नेक्स्ट कमांड्स विल रन, एल्स अगर बी ऑफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू बी ऑफ जे है देन दिस फर्दर हाफ पार्ट ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। सो अगर ए आई लेस देन और इक्वल टू बी जे है तो एक्स आई कॉमा जे हम असाइन कर रहे हैं ए ऑफ आई को। ओके मीन्स जैसे कि यहाँ पर 7 एंड 13 में से 7 को हमने यहाँ पर असाइन कर दिया था तो ये 7 यहाँ पर असाइन हो जाएगा। एम आई राइट? एंड देयरफॉर द फर्दर व्हाट वी हैव डन, ये जो 7 है ना वो हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया था। दिस इज योर B1 एंड दिस इज योर A1 पोजिशन। सो A1 से भी हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया था। सो वी आर राइटिंग डाउन दैट दिस इज BJ इज इक्वल टू BJ माइनस AI। करेक्ट, यही लिखा है, सिर्फ यहाँ पर 0 आता है वो नहीं लिखा है। नाउ I will raise to I plus 1 and L is equal to L plus 1. So this is your row counter and this is your BFS counter. अगर ये सही नहीं है कि ये inequality नहीं है आपके पास, instead of that ये inequality है, then the further part will get run. So Xij is equal to Bj and AI will be AI minus BJ. तो रिवर्स सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट कर रही है। अगर इंस्टेड ऑफ 13 हियर यहाँ पर 7 होता और यहाँ पर 13 होता तो हम ये वाला 7 असाइन कर देते। सो दैट प्रोसेस वी जस्ट एनरोल्ड हियर एंड इन दैट केस अगर ऐसा है तो J इज इक्वल टू J प्लस 1 एंड L इज इक्वल टू L प्लस 1। मीन्स मैं जो आपको यहाँ पर कह रही थी ना कि हम अगर देखो यहाँ से मेंबर हमारा असाइन हो चुका है, ये 7 असाइन हो चुका है राइट, एंड यहाँ पर बचा है 6। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आइदर इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं या फिर इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये 7 माइनस 7 0 हो जाता है ये लाइन हमारी ब्लॉक हो रही है। मीन्स हम कर रहे हैं, हम एक असाइन नहीं कर रहे हैं, हमारा रिक्वायरमेंट एंड डिमांड यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। सो आई हैव ओनली चांस टू गो अपवर्ड। सो अगर ये मेरा I इज इक्वल टू 1 है, दिस इज J इज इक्वल टू 1, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ से असाइन कर दिया तो ये क्या कर रहे हैं, हम I इज इक्वल टू I प्लस 1 बोल रहे हैं। मीन्स I इज इक्वल टू 2 पर जा रहा है, J विल रिमेन सेम एज 1 एंड L जो है हमने 0 को असाइन किया था वो एलोकेट हो चुका है तो L हो जाएगा L प्लस 1 के फॉर्म में। लॉजिक इज वेरी सिंपल ओवर हियर राइट। एल्स अगर ये दोनों भी कंडीशन नहीं है ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल एंड योर प्रोसेस एंड इट विल गो टू वंस अगेन दिस वाइल लूप। अगर इफ़ एल्स 2 बार हम रन कर रहे हैं एंड वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ब्रेक हो जाएगी सिस्टम, इट विल एंड द प्रोसेस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इट विल गो टू वाइल लूप। वाइल लूप पे क्या जा रहा है, एल अब आपके क्या आपके पास क्या आ गया, इट्स L प्लस 1 मीन्स 1 आ गया, 1 स्टिल लेस दैन BFS है। तो फिर से ये आगे वाली प्रोसेस शुरू हो जाएगी until and unless this L is greater than BFS, this while loop will not stop. Correct? So जैसे ये stop हो जाएगा print the initial BFS over here. तो यहाँ पर आपको initial BFS print करना है and that IBFS is equal to array to table X. So जो X हमने initially असाइन किया था वो array आपको यहाँ पर print करना है. So that DISP command will display your initial basic feasible solution. अब हमें ये चेक करना है कि ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की लेंथ क्या है। सो हम लेंथ कमांड के साथ ये लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल X की। इफ दिस लेंथ इज इक्वल टू BFS देन प्रिंट दैट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इन नॉन डिजेनरेट एंड अगर ये लेस दैन BFS है तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज डिजेनरेट। सो विद दैट वी एंड अप द कमांड एंड इनिशियल कॉस्ट I am going to write down as sum of all cost matrix multiplied by X, correct? And F print will give you the initial basic feasible solution that is in terms of the initial cost जो हमने पहली लाइन में कैलकुलेट की है। So this is your northwest corner method.
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सॉल्व करने के और भी कई तरीके हैं, और भी अलग अलग टाइप के लॉजिक आप यहाँ पर लगा सकते हो. एंड विद दिस मैटलैब सॉफ्टवेयर यू कैन डेवलप योर ओन प्रोग्रामिंग फॉर द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ऑल्सो. ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें फाइनल सोल्यूशन क्या मिला है. लाइक द वे वी एनकाउंटर्ड यस्टरडे, आपका जो ये कॉस्ट वाला मैट्रिक्स है ना, वहाँ पर लेट मी गेट बैक दैट कॉस्ट वाला मैट्रिक्स. ओके, अच्छा यहाँ पर कॉस्ट वाला मैट्रिक्स हमने लिया ही नहीं है, सो सॉरी, नॉट रिक्वायर्ड हियर. तो वो कॉस्ट वाला मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं आ रहा है, एंड एक्स वाला मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिल रहा है. सो दिस इज 7, 6, 8, 11, 10 एंड 6. This we could obtain as the basic feasible solution. So total count है उसका 6, hence the solution is non-degenerate, and initial cost में हमें मिली है 2033. सेम कॉस्ट हमने यहाँ पर डिफाइन की थी. दिस इज 2023. कैसे आया है यहाँ पर? Have I made any mistake? I'm sorry, यहाँ पर 231 आना चाहिए था. I'm so sorry. तो ये यहाँ पर 3 आता है. So 2033. So this is our new northwest corner method. Okay. Do you have any issues over here? You can ask. Else we'll proceed for VAM. May I? Yes. वैसे ये पूरा प्रोग्राम ना मैंने आपको ऑलरेडी भेजा है आज ही इन द आफ्टरनून सेशन, एंड यू हैव टू कंप्लीट वन असाइनमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट टाइप ऑफ असाइनमेंट आई एम गोइंग टू गिव यू, एंड देन विल गेट बैक टू दैट वैम. We have prepared one question bank also, that also I'll explain you. Yes, so this is your assignment 2 on MATLAB, which is based on the 6th unit, and this will be considered as the internal evaluation part B. Second वाला जो internal evaluation है, part A in terms of that classroom examination we completed, correct, एंड सेकंड पार्ट है असाइनमेंट बेस्ड ऑन द मैटलैब सॉफ्टवेयर. सो आपके 3 सेट्स मैंने यहाँ पर बनाया है, सेट ए, सेट बी एंड दिस इज सेट सी. इसका एक सैम्पल फॉर्मेट भी मैंने यहाँ पर बनाया है, असाइनमेंट 2. तो इस फॉर्मेट में आपको असाइनमेंट ये पूरी बनानी है, एंड एज वेल एज आपको हमें मैटलैब प्रोग्रामिंग पूरी शो करनी है फॉर द गिवन प्रॉब्लम व्हाट वी एनरोल्ड. नाउ आपका फर्स्ट पेज है, ये टाइटल पेज होगा. राइट डाउन द असाइनमेंट नंबर, इट्स 2, एंड यहाँ पर टाइटल आपको चेंज करना है. आई विल जस्ट मार्क दिस विद द रेड साइन, रेड कलर, एक मिनट, सो सॉरी, विद रेड कलर. सो प्लीज़ चेंज दैट. नेम, रोल नंबर एंड डेट ऑफ सबमिशन. सो आपकी ये सेकंड असाइनमेंट है. टाइटल आपको डालना है कि यू आर यूजिंग मैटलैब टू फाइंड आउट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग LCM, NWCM एंड VAM मेथड. तो तीनों भी मेथड के साथ आपको ये प्रोग्रामिंग करनी है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो क्वेश्चन 1 जो है वो LCM मेथड के साथ आपको कंप्लीट करना है, करेक्ट. देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मैटलैब कोडिंग क्या है, आउटपुट क्या है, एंड इमेज क्या है, मैटलैब इंटरफेस की आपको इमेज शो करनी है. देन सिमिलरली क्वेश्चन 1 ही आपको सॉल्व करना है ऑन NWCM मेथड. अगेन दिस कंटेंट यू हैव टू डिस्प्ले प्रॉपरली. Question 1 once again same question you have to solve with the VAM method as well. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने एक ही टाइम लिखा तो भी चलेगा, एंड कन्वर्जन विल नॉट बी देयर क्योंकि हम यहाँ पर कुछ कन्वर्जन नहीं कर रहे, हमारे. सो ये हम हटा देते हैं. एंड फाइनली यू हैव टू राइट डाउन द कंक्लूजन. तो तीनों भी मेथड के साथ आप ये प्रोग्रामिंग करके सॉल्व कर रहे हो. सो विच मेथड विल गिव यू द बेस्ट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम मेनली मिनिमाइज द कॉस्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं. हियर मैक्सिमाइजेशन द प्रॉफिट वाला प्रॉब्लम हमने यहाँ पर दिया ही नहीं है आपको. सो दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन. सो कन्वर्जन वाली स्टेप यहाँ पर नहीं आएगी.
अगर कन्वर्जन वाली स्टेप कब आएगी, अगर हमने मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम आपको दिया है, वो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है एंड देन एनी वन ऑफ दिस 3 मेथड आपको अप्लाई करनी है, बट दैट प्रॉब्लम वी आर नॉट टेकिंग हियर. सो कन्वर्जन वाला पॉइंट में हटा ही देती हूँ. सो इस फॉर्मेट में आपको आपकी असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है. नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस फॉर द असाइनमेंट. सो ये 3 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी. सो दिस इज़ वन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी हैव गिवन यू. तो आपको ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए मैटलैब में तीनों भी प्रोग्राम्स करने हैं एंड यू हैव टू कंपेयर विच इज़ द बेटर सोल्यूशन आउट ऑफ 3. सेम इज़ फॉर सेट बी, सेम इज़ फॉर सेट सी. नाउ फॉर मैकेनिकल division of mathematical optimization, I have breaked up this 3 assignment for students from division A will solve set A, students from division B will solve set B, and students from division C will solve the set C. Likewise, the distribution of assignments to your division, the students who are from computer department, IT department, ENTC and civil department, your teacher will convey you that which one set you have to go for. So please stay in touch in that WhatsApp group. Your teacher will intimate soon about the same. Okay, so ये है आपकी assignment, and as if now I have provided you all the 3 programs with entire coding. Your task is pretty simple. It's just a matter of half an hour. If you are having your proper login, so यहाँ पर देखो, I could take my cursor to this particular prompt. अगर मैं ऑनलाइन ऐड कर रही हूँ मैटलैब एंड वहाँ पर ज्वाइन होके मैं सॉल्व कर रही हूँ, सो हियर माई नेम विल अपीयर. करेक्ट. इफ यू आर सॉल्विंग ऑफलाइन, you have to show me that screen entire programming while submitting this particular assignment. So prior assignment जो हमने ऑब्जर्व की थी, many of the students just copied from their friend and they included that programming on paper. But now as it is final submission, we would like to see your laptop or would like to see the online programming of all these 3 methods. Okay, so that's about the submission and assignment of the MATLAB coding. Apart from this, now let us head towards the VAM method. VAM method के साथ हम क्या करते हैं? I hope you could remember a little bit part of VAM. What we do exactly with VAM? Penalties add करते हैं. And how we decide the penalties? मैम 2 least value को subtract करते हैं. But how we calculate the penalties? By taking subtraction लेते हैं. हाँ, किसका subtraction लेते हैं? हर एक कॉलम और रो में से 2 लीस्ट वैल्यूज, 2 लीस्ट वैल्यूज का subtraction लेते हैं. Okay, let us add this particular cost matrix to the journal. This is 3341. 3341. Then this is 4242. Then 1532. 1 5 3 and 2. So ये है हमारी डिमांड वाली कॉल रो. तो ये डिमांड वाली रो है 120 80 75 and 25. एंड ये है 100 125 75. 100 125 and 75. ओके, सो ये है आपका प्रॉब्लम वैम का. वी आर डीलिंग विद द वैम मेथड नाउ. सो हमें बेसिकली द लूप जो हम रन कर रहे हैं उसका अल्गोरिदम या प्रोग्रामिंग हमें देखनी है. द रेस्ट ऑफ थिंग्स आर प्रीटी सिमिलर. सो यहाँ पर है आपका सोर्स 1, दिस इज सोर्स 2, सोर्स 3, यहाँ पर है डेस्टिनेशन 1 2 3 and 4. First of all, tell me that whether it is balanced problem or unbalanced problem. Is it balanced or unbalanced? Balanced. It's balanced problem, correct? So we can go for the further simplification.
सो इस बैलेंस प्रॉब्लम के लिए अब हम पेनल्टीज फाइंड आउट करते हैं. सो आई जस्ट राइट डाउन दैट पेनल्टीज हियर. दिस इज D4. सो penalty I'll write down here column wise and penalty will write down here row wise. So usually we have given the numbering, it's P1 row wise and column wise. So हम difference identify करते हैं. So lowest two integers यहाँ पर जो है numbers यहाँ पर है उनका positive difference हम find out करें. So 3 and 1 it's 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर है 1, column wise it's 2, यहाँ पर 1, this is 0, correct, और यहाँ पर 1. now what choice we are having here, मुझे जो पेनल्टीज निकल के आती है उसमें से कौन सी पेनल्टी चूज़ करनी है. मैक्सिमम 1. सो मैक्सिमम 1 के लिए मेरे पास अब टाई है. आई एम हैविंग 2 हियर एंड आई एम हैविंग 2 हियर ऑल्सो. सो आई कैन गो फॉर द रैंडम चॉइस. मैम D3 में 1 आएगा. आई एम सॉरी, कहाँ पर? कॉल D3. हाँ, यहाँ पर 1 आएगा, करेक्ट. रेस्ट ऑफ इज ओके, राइट? हाँ, मैं इसे इरेज ही कर देती हूँ. यहाँ पे 1 आएगा. सो आउट ऑफ दिस 2 आई कैन चूज एनी वन. रैंडम चॉइस इज अलाउड. सो दिस इज योर टाई एंड यू कैन गो फॉर द रैंडम चॉइस. लेकिन ये रैंडम चॉइस हमें प्रोग्रामिंग करते वक्त बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू व्हाइल टेकिंग द प्रोग्रामिंग टू दिस सिचुएशन ऑफ वैम, विल चेक आउट. तो हम इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ करें. सपोज ये चूज़ किया मैंने एंड आई एम एंटरिंग इनटू दिस रो. सो इस रो में मुझे क्या करना है, लीस्ट वैल्यू चूज़ करनी है. वो क्या है, 1. वैसे अगर इस प्रॉब्लम में आप ये भी 2 चूज़ करते हो तो लीस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, ये 1 आ रही है, करेक्ट. सो अगर मैं ये 1 चूज़ कर रही हूँ तो 125 में से 25 लेस वाली वैल्यू यहाँ पर एलोकेट होगी. एंड ये 2 चूज़ कर रही हूँ तो इस 1 के लिए 75 एंड 125 में से लिस्ट वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी. एनीथिंग विल डू, विल जस्ट क्रॉस चेक कि इस 2 के साथ क्या होता है. सो दिस इज 25 एलोकेटेड ओवर हियर, करेक्ट. तो यहाँ पर बच जाएगा 0 एंड यहाँ पर बचेगा 75. अगेन आई हैव टू गो फॉर द पेनल्टी 2. सो P2 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. सो ये पेनल्टी मेरी 0 आएगी. तो यहाँ पर कोई भी मेंबर एलोकेट नहीं होगा, राइट. सो आई जस्ट राइट डाउन द पेनल्टीज अकॉर्डिंगली. सो दिस इज 3 - 3, 0 आ जाएगा यहाँ पर. यहाँ पर हो जाएगा सेम 0. यहाँ पर 2 - 1, दिस इज़ 1 हियर. यहाँ पर फिर से आ जाएगा 2, यहाँ से कोई नहीं हट रहा है, दिस इज़ 1 हियर. यहाँ पर फिर से आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा डैश, क्योंकि ये मेंबर्स अब यहाँ पर नहीं रहेंगे. नोट इट. सो अब हमारे पास पेनल्टी कौन सी आ रही है, ये मैक्सिमम आ रही है. एंड नाउ यू कैन हैव द लीस्ट वैल्यू थ्रू द कॉस्ट मैट्रिक्स. इट्स 1 एंड 1 के अक्रॉस हमारे पास है 75 एंड 120. तो यहाँ पर 75 एलोकेट हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 75. हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो 25 एंड दिस 20, 45 विल रिमेन हियर. सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रैंडम चॉइस के साथ यहाँ पर 25 पहले एलोकेट हो गया एंड यहाँ पर 75 बाद में एलोकेट हो गया. अगर मैं ये 2 चूज़ करती, इन दैट केस ये 75 पहले एलोकेट हो जाता एंड ये 25 सेकंड टाइम एलोकेट हो जाता. सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एलोकेशन, बट एलोकेट हो रहे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, करेक्ट. सो 0 कहाँ पर मिला है, यहाँ पर. नाउ दिस मेंबर्स विल नॉट टेक पार्ट इन द फर्दर कैलकुलेशन. सो P3, नाउ आई हैव टू ऐड द फर्दर पेनल्टी. सो लेट अस अगेन चेक आउट. दिस इज 0, यहाँ पर आ जाएगा ये 2, यहाँ पर डैश आ जाएगा ओवर हियर. आई विल गेट 1 एज द डिफरेंस. यहाँ पर भी 1 डिफरेंस है, यहाँ पर 0 डिफरेंस है एंड यहाँ पर डैश. अब हमारे पास कौन सी ग्रेटर वैल्यू है, दिस 2. now we can enter into this corresponding row and the least value will choose. this is 2. so 2 के अक्रॉस हमारे पास असाइन हो जाएगा 80. तो यहाँ पर आएगा 0 एंड यहाँ पर आएगा 45 once again. am I right? so still we are having few values over here. तो 0 कहाँ पर आ गया, उस सेल की या कॉलम की या रो की सारी फर्दर वैल्यूज हम कैंसिल कर देते हैं. दैट विल नॉट टेक पार्ट इन टू फर्दर कैलकुलेशन. सो दिस इज P4. फर्दर वी नीड टू कैलकुलेट. सो अब हमारे पास है इस कॉलम से दिस इज़ 1, यहाँ से 0, यहाँ पर डैश, यहाँ पर आता है 1 once again, दिस इज़ डैश. नाउ
यहाँ पर 0, दिस इज डैश। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, पेनल्टी है 1, तो मैं किसी भी 1 के साथ चल सकती हूँ। आई चूज दिस 1 टू गो विथ, सो इट विल एंटर इनटू दिस। लीस्ट वैल्यू है 3 के अक्रॉस हमारे लिए असाइन करने के लिए 45 वैल्यू है, लेट अस असाइन दैट। तो यहाँ पर बचेगा 0 एंड यहाँ पर बचेगा 30, करेक्ट। नाउ अगेन यू कैन गो फॉर द पेनल्टी, और जहाँ पर 0 आया है ना वहाँ का ये मेंबर कैंसिल होगा। सो आई एम हैविंग जस्ट 2 ऑप्शंस हियर। अगर आपने यहाँ पर पेनल्टी नहीं भी निकाली जब आप मैनुअल सॉल्व कर रहे हो, तो इस 4 में से यहाँ पर 0 आ जाएगा, रेस्ट ऑफ थिंग्स आर कैंसल्ड आउट। सो इस 4 को मैं अगर कंसिडर कर रही हूँ तो मुझे असाइन होगा यहाँ पर 30 लीस्ट वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड यहाँ पर बचेगा 45। अब बचा हुआ है ये मेंबर, इसको असाइन होगा रिमेनिंग 45। सो सबसे लास्ट में जब आप लोग अलोकेट कर रहे हो ना, तो सप्लाई वाली कॉलम में एंड डिमांड वाली रो में सिमिलर वैल्यूज बचनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ऑलराइट। अगर ये वैल्यूज नहीं बचती है तो देन यू हैव कमिटेड सर्टन मिस्टेक ओवर हियर। सो ये वैल्यू हमने यहाँ पर असाइन कर दी। नाउ यू कैन काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ एलोकेशंस यू डिड। 1 2 3 4 5 6 एलोकेशंस वी हैव डन, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और ये इक्वल टू है m प्लस n माइनस 1 से। 3 रोज है, 4 कॉलम्स है, -1, सो दिस इज 6। सो हमारा सोल्यूशन यहाँ पर नॉन डीजनरेट सोल्यूशन हो गया, एंड हमारा सोल्यूशन क्या मिलेगा, IFBS दिस इज इक्वल टू 45 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 4, करेक्ट, plus anybody please calculate it and tell me what is this value is. This is 80 into 2 plus 45 into 4 and plus this is 75, correct. So ये values आ जाती है 135 plus 120 plus 25 and this 75, this is 100 plus 160 and plus this is 180. So this value comes out to be 695. Am I right? Yes ma'am. Okay. So VAM का सोल्यूशन हमें यहाँ पर मिल गया। नॉन डिजनरेट सोल्यूशन है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर अनबैलेंस्ड हुआ तो डेफिनेटली 1 row or 1 column will get added over here and accordingly penalties will get calculated. Yes? Hello? Sorry, it's not audible. Is anybody asking question? Yes ma'am. हाँ. It's 25 into 4. I'm sorry? Ma'am, it's 25 into 1. You have written 100 instead of 100 कहाँ पर है? 25, this 25 plus this 75. It's 100 I noted. it. Okay, got it. हाँ? Okay, हाँ. So I hope this VAM method is clear. And now you go for the simplification. Actually, we too have many big programs like assignments problem also, for UV method as well, and further for the PERT analysis. But that particular part we are skipping because यहाँ पर जो logic हम लगा रहे हैं ना, it is a big algorithm in all 3 methods. If you are more interested, you can study beyond, but we are limiting our discussion of MATLAB for optimization techniques for these 3 methods only. And as you are aware of the logic what you are applying, if this base is clear, then any kind of logic or any kind of programming you can definitely do in MATLAB. So once again, let us get back to the coding now. So first part, this is very clear part for all the programming we are going to do, correct. Then first phase, include your cost matrix, demand wala matrix and demand wala column, I'm sorry, supply wala column and demand wali row. Then check out whether your problem is balanced or unbalanced. If it is unbalanced, your rows will get added over here. And I guess ये भी problem हमारा balanced problem नहीं है. We can try out one more problem which is unbalanced for VAM. जो LCM वाला problem हम कल solve कर रहे थे ना, वो unbalanced है. तो same problem हम VAM से solve करके देखते हैं, ठीक है.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द लॉजिक हियर. सो यहाँ पर जो हमने प्रोग्रामिंग की है ना, ये पूरी प्रोग्रामिंग सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए है कि आपका प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है. सो ये कर क्या रहा है, आपकी जो ये डिमांड सप्लाई वाली कॉलम है एंड डिमांड वाली जो रो है, इनकी सम इक्वल है या नहीं ये क्रॉस चेक करेगा. अगर नहीं है तो ये आइदर रो ऐड करेगा या फिर कॉलम ऐड करेगा. सो दैट प्रोग्रामिंग वी हैव डन ओवर हियर. दिस इज अवर फर्स्ट फेज, सेकंड फेज. देन वी हैव टू डिफाइन द कॉस्ट मैट्रिक्स. सो हम यहाँ पर कॉस्ट मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं. आई कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट, क्योंकि हमारी ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स ना यहाँ पर चेंज हो रही है. वी आर गोइंग टू ऐड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं ना चीज़ें. जैसे यहाँ पर 0 आ जाता है, दीज टू थिंग्स वी आर कैंसिलिंग आउट. ऑलराइट, सेम थिंग हम NWCM में भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ना इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट इन्फिमम और इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पोजिशन, यहाँ पर हम I एंड J में एक 1 ऐड कर रहे हैं. सो द पोजिशन आइदर स्टेप वाइज इन दिस वे एंड स्टेप वाइज इन दिस वे. So that we are going to get. So it's not needed to assign I cost is equal to cost in that NWCM method. ठीक है. Then again we are going to assign a blank x. Instead of blank x, I must say this is x which is having all zeros at all positions. कौन सी positions पर हमें हमारा solution मिलने वाला है, that we are right now not knowing. Okay. Again in that command window we are having all the things, so we'll include that. So ये है आपका cost matrix, यहाँ पर आप देख रहे हो. Then this is your supply वाला column A, this is your demand वाली row B, and these are the standard notations we are keeping in our programming. Cost for cost matrix, ठीक है, capital A for supply and capital B for demand. And now we can check out after running this program properly, given transportation problem is balanced, ऐसी कमेंट यहाँ पर मिली है हमें. सो पूरा प्रोग्राम मैंने सेव किया है फर्स्ट ऑफ ऑल विथ प्रॉपर नेम एंड देन आई एम रनिंग दैट, कंपाइलिंग दैट. सो मुझे आफ्टर कंपाइलेशन ये सिंप्लीफिकेशन मिला है. नाउ दैट आई कॉस्ट वी आर असाइनिंग एज अवर कॉस्ट मैट्रिक्स. सो ये आपका एक डिफरेंट कॉस्ट मैट्रिक्स क्रिएट करके रखेगा, बिकॉज लेटर ऑन इसके साथ हमें एलोकेशंस को मल्टीप्लाई करना है एंड हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स है वो चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसे असाइन करके रख रहे हैं. एंड देन ऊपर अब आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पर जो है ये x हमने असाइन किया है, जो एक्चुअल में इस 0 वाले मैट्रिक्स के साथ आएगा. सो इसके हर एक पोजीशंस पर हमारे एलोकेशंस ऐड होते जाएंगे, अपग्रेड होते जाएंगे, ऑप्टिमाइज होते जाएंगे. राइट. Then similarly, 2 more same coding we are going to use, which we used in the LCM method and NWCM. M, N, the size of your cost matrix we are going to assign M as a row and N as a column. So हमें यहाँ पर देखो आप कमांड वाली विंडो में, नीचे वाली विंडो में M इक्वल टू 3 यहाँ पर मिल रहा है, करेक्ट, एंड N इज इक्वल टू 4 मिल रहा है. दिस इज 3x4 मैट्रिक्स. नाउ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस वी ऑलरेडी सेटअप इन द क्वेश्चन बैंक, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डाल के देखते हैं. यहाँ पर अनबैलेंस्ड है, नॉन डीजनरेट सॉल्यूशंस भी है. सो वो सारी चीज़ें हम करके देखते हैं. सो ऑल दीज 3 प्रोग्राम्स आर द स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स टू फाइंड आउट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. ठीक है. ओके, एंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वी आर काउंटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वंस अगेन, BFS इज इक्वल टू M plus N minus 1. So total number of basic feasible solutions we are going to get here, that we can compare with the determined one or calculated one. And now our main programming for the finding out penalty values and the allocations is starting with this for loop. अब यहाँ पर हम for loop ले रहे हैं and we are again assigning the if loop also here, if else statement also here. So you can check out, this is a very giant programming for this WAM method, क्योंकि हर एक स्टेज पर राइट पेनल्टी फाइंड आउट करना, रो वाइज कॉलम वाइज, उसमें से भी ग्रेटेस्ट पेनल्टी आइडेंटिफाई करना एंड उसके अक्रॉस वाली रो में मिनिमम वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करके मिनिमम एलोकेशंस करना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैन्युअली इट लुक लाइक वेरी इजी, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो हर एक कंडीशन, हर एक केस हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी होगी. सो
फॉर लूप वी आर स्टार्टिंग विथ आई इज इक्वल टू 1 to m स्टार n। तो यहाँ पर हम i जो है हमारी सारी पोजीशंस के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। सो इतनी कितनी पोजीशंस है हमारे पास टोटल 3 into 4 12 पोजीशंस वी आर हैविंग। सो हमारी पोजीशन है 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड यहाँ पर 3 1 3 2 3 3 3 4। सो आपने पेनल्टी P1 लेते वक्त क्या किया था, मिनिमम ऑफ ऑल दिस 4 एलिमेंट्स यू हैव चूजन, करेक्ट, एंड देन यू हैव नोटेड द डिफरेंस हियर, बट दिस मैटलैब विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू चूज। तो हमें इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एंड इसलिए हमें ये सारी पोजिशंस चाहिए। सो हाउ मेनी टाइम्स दैट आई विल वैरी m into n, 12 times it will vary. So I is equal to 1 to m into n, 1 to 12. So अगर ये m आपका 5 है, n आपका 10 है, तो ये 1 to 50 तक वैरी होगा and that many number of times this for loop will execute it. Now we are going to assign a column COL और ये कॉलम हम किसे असाइन कर रहे हैं, सॉर्ट कॉस्ट कॉमा 1। सो यहाँ पर ये पूरी चीज़ समझाने के लिए ना मुझे ये पूरा प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। I'll just run that. अच्छा ये हमने रन किया है आई गेस ना, ओके ओके यस सॉरी यस आई गेट दैट थिंग। दिस इज कॉलम इज इक्वल टू सॉर्ट, किसे सॉर्ट कर रहे हैं हम, कॉस्ट वाले मैट्रिक्स को विथ कॉलम वाइज, 1 फॉर कॉलम वाइज, ठीक है। सो ये सॉर्टिंग कैसे होती है, लेट अस चेक आउट हियर। सी दिस कॉल, यहाँ पर कमांड विंडो में ये आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, तो ये कॉलम वाइज सॉर्ट हो चुका है। आपका कॉलम क्या है, मैं ऊपर जाती हूँ फिर से कॉस्ट मैट्रिक्स के लिए, कॉलम क्या है आपका 3 4 1 एंड यहाँ पर सॉर्ट आउट करने के बाद आपको क्या मिला है 1 3 4। सो कॉलम वाइज ये सॉर्ट हो चुका है, राइट। देन वी आर गोइंग टू सॉर्ट रो वाइज। तो नेक्स्ट लाइन में हमने रो वाइज सॉर्ट करने के लिए भी बोला है, 1 फॉर कॉलम एंड 2 फॉर रोज, ये सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर रो वाइज। सो ये आप कॉलम मैट्रिक्स देख सकते हो, तो रो वाइज ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, बट नाउ व्हेन वी अप्लाई दैट रो नेक्स्ट कमांड इट विल सॉर्टेड आउट इन टर्म्स ऑफ रो वाइज। सो अब आप देख सकते हो दिस इज 1 3 3 4 फर्स्ट रो, प्रायरली इट वाज 1 2 3 1 1 2 3 1, तो ये रो वाइज भी सॉर्ट आउट हो चुका है। कॉलम वाइज एज वेल एज रो वाइज। एक ही मिनट, यहाँ पर क्या हुआ है, cost is equal to 2, ओके 1 2 2 यहाँ पर लिया है, दिस इज 1 3 2 एक मिनट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। दिस इज़ कॉलम वाइज सॉर्टेड, तो ये हमारा प्रायर कॉलम था। एक ही मिनट में प्रॉब्लम देखती हूँ पहले। दिस इज़ 1 4 3, तो यहाँ पर 1 3 4 आ जाएगा। दिस इज़ 2 3 5, दैट्स राइट। यहाँ पर 3 4 4 आ जाएगा। दिस इज़ 1 2 2, सही है ये। एंड जैसे हम रो वाइज सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू गेट दिस वन। सो दिस इज़ 1 3 3 4, I'm so sorry. Okay,
वो कॉलम वाले मैट्रिक्स को ट्रीट नहीं कर रहा है, आई फॉरगेट दैट, ये कॉस्ट वाले मैट्रिक्स को ट्रीट कर रहा है. आई थॉट वंस वी आर डूइंग कॉलम एंड सेम मैट्रिक्स वी आर गोइंग टू डू फॉर द रो मैट्रिक्स. आई एम सो सॉरी, इट्स माई कन्फ्यूजन. सो हम कॉस्ट वाला मैट्रिक्स ही कॉलम वाइज एक बार सॉर्ट कर रहे हैं एंड कॉस्ट वाला मैट्रिक्स ही सेकंड टाइम हम रो वाइज सॉर्ट कर रहे हैं. नाउ दैट्स राइट. सो रो वाइज अगर हमने स्टार्ट किया तो 1 3 3 4, देन 2 2 4 4 एंड 1 2 3 5, ऐसे ये सॉर्ट हो जाएगा. एंड वंस यू सॉर्टेड इट विद द कॉलम वाइज एंड रो वाइज, एंड नाउ यू कैन असाइन अ p रो ओवर हियर which will subtract and calculate your penalty row wise. So this is row, any row, correct, minus the row which is having the any row minus any column that you have to take. So it will calculate the values 2 0 1. सो लीस्ट वैल्यू यहाँ पर जैसे कैलकुलेट होती है ना, कॉलम वाइज हम चलते हैं. सो द लीस्ट वैल्यू वी आर हैविंग दिस एज, ये कॉलम वाइज सॉरी रो वाइज मुझे कंसिडर करना है, हाँ रो वाइज. सो इट्स पी रो वी आर असाइनिंग कि यहाँ पर जो हमें असेंडिंग ऑर्डर में हमने मिला है ना मिले ना वैल्यूज. सो ये क्या कर रहा है, 1 and 3 इन दोनों को ही ले रहा है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो. सो फर्स्ट कॉलम जो होगा वो आपकी लीस्ट वैल्यू होगी एंड सेकंड कॉलम जो होगा वो आपकी ग्रेटर वैल्यू होगी. तो किसी भी रो के लिए सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम विल गिव यू द पेनल्टी रो वाइज. तो 3 minus 1 2, 2 minus 2 0 एंड दिस इज 2 minus 1 1. तो ये आपकी पेनल्टी ऐड हो गई यहाँ पर 2 0 1. देन सिमिलरली कॉलम वाइज पेनल्टीज भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो. करना क्या है, कॉलम किसी भी कॉलम में सेकंड वाली रो माइनस फर्स्ट वाली रो को सब्ट्रैक्ट करना है. राइट. तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, ये जो कॉलम वाली मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट की थी ना, तो सेकंड वाली रो मीन्स ये 3 माइनस फर्स्ट वाली रो मीन्स 1, 3 minus 1 2, यहाँ पर 3 minus 2 1, यहाँ पर 4 minus 3 ये भी 1 हो जाएगा एंड दिस इज 2 minus 1 ये भी 1 हो जाएगा. सो विल चेक आउट कि ये जो पी कॉलम है ना, ये यहाँ पर आपकी पेनल्टीज क्या आती है, दिस इज 2 1 1 1. तो रिमेंबर दीज टू थिंग्स, करेक्ट. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है पेनल्टी 1. तो इस पेनल्टी से मुझे करना क्या है, मुझे मैक्सिमम चूज करना है. सो आई एम गोइंग टू असाइन 1 R विच इज मैक्स ऑफ पी रो एंड C एज मैक्स ऑफ पी कॉलम, करेक्ट. तो ये जो R मैक्स है वो हम फाइंड आउट करेंगे इफ P रो इज इक्वल टू मैक्स ऑफ RC और नॉट. सो P रो इज इक्वल टू मैक्स ऑफ RC और नॉट. तो ये हम फाइंड आउट करेंगे. वैसे भी C मैक्स हम फाइंड आउट करेंगे कॉलम के लिए. मैक्सिमम पेनल्टी वैल्यू पोजीशन रो वाइज एंड मैक्सिमम पेनल्टी वैल्यू पोजीशन कॉलम वाइज, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे. am I right? And then cost values in highest penalty row and cost values in the highest penalty column हम आइडेंटिफाई करेंगे. And that we are assigning to the one more variable CR and this is CC. CR for C rows and CC for C columns. So cost matrix में से R max हम assign करेंगे, करेक्ट, किसी भी कॉलम के लिए, एंड CC में से किसी भी कॉलम रो के लिए हम C max कैलकुलेट करेंगे. एंड देन वी विल यूज दैट इन द फर्दर कैलकुलेशन. सो फर्दर कैलकुलेशन में हम यहाँ पर रो असाइन कर रहे हैं, मैक्स ऑफ पी रो. इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो साइन है ना, टिल्ड वाला साइन है, इज इक्वल टू, सो इट्स नॉट इक्वल टू. सो मैक्स ऑफ पी रो इज़ नॉट इक्वल टू मैक्स ऑफ पी कॉलम. तो हम जो मैक्सिमम है वो चूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर 2 मिला था एंड यहाँ पर भी 2 मिला है. अगर यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 2 होता तो जाहिर सी बात है कि मैं इस 3 पर ही जाती बाय डिफ़ॉल्ट. सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू गो फॉर फर्दर डिस्कशन ऑफ टाई अप एंड ऑल. लेकिन यहाँ पर दोनों जगह पर 2 है तो मुझे इक्वालिटी एंड नॉन इक्वालिटी दोनों के बारे में डिस्कस करना है. अगर ये नॉट इक्वल है एंड मैक्सिमम ऑफ पी रो इज ग्रेटर दैन मैक्स ऑफ पी कॉलम, तो मुझे पी रो की तरफ जाना है, राइट. लेकिन अगर यहाँ पर 3 ना होके यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता तो मैं यहाँ पर आ जाती. सो दैट अगेन हैव द इनइक्वलिटी.
आइदर मैक्स ऑफ पी रो इज ग्रेटर देन मैक्स ऑफ पी कॉलम और मैक्स ऑफ नेक्स्ट वाला, अच्छा एल्स वाली कंडीशन दी है, एल्स अगर ये नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन क्या होगी कि मैक्स ऑफ पी कॉलम विल बी ग्रेटर देन मैक्स ऑफ पी रो। सो एल्स वाली कंडीशन में हमारी ये कमांड्स आइडेंटिफाई होगी या रन होगी। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि पी रो का मैक्सिमम आपका ग्रेटर है, देन रो इंडेक्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, कॉलम इंडेक्स हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन विल फाइंड आउट द मिनिमम ऑफ सी आर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आर मैक्स, कॉस्ट मैट्रिक्स में से आर मैक्स। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे, सी द लॉजिक, हम इस 2 पेनल्टी को चूज कर रहे हैं। सो इस वाले कॉलम में हम लीस्ट कॉस्ट मिनिमम ऑफ दैट कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ दैट रो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और यहाँ पर अलोकेट क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू यहाँ पर अलोकेट कर रहे हैं। सो ये लॉजिक हमने यहाँ पर प्लेस किया है। देन रो 1 विल बी इक्वल टू आर मैक्स इन ब्रैकेट रो इंडेक्स। तो उस रो से करस्पॉन्डिंग आर मैक्स की वैल्यू हम रो 1 में असाइन करेंगे। सो फाइंडिंग आउट द रो इंडेक्स एंड प्रिजर्विंग कॉलम, सो कॉल इज इक्वल टू कॉलम अंडरस्कोर इंडेक्स। तो हम यहाँ पर कॉलम एंड रो प्रिजर्व करके रख रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम एंड वी आर असाइनिंग हियर द अलोकेटिंग हियर द वैल्यूज। सेम चीज़ हम कर रहे हैं अगर एल्स कंडीशन है, राइट, तो हम ये वाली कोडिंग करेंगे। अगर ये पूरा कंप्लीशन हो जाएगा, इफ इट इज नॉट इक्वल टू, इन दैट केस योर प्रोग्राम विल एंड ओवर हियर, राइट, एंड यू कैन असाइन योर x11 वैल्यू टू योर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सो इट विल बी मिनिमम ऑफ आर सप्लाई वाला कॉलम एंड डिमांड वाली रो, and you can assign that in terms of max of x11 and you can again assign that in terms of the row position and column position, जैसे हमने LCM मैट्रिक्स में कल देखा था। else अगर ये ट्रू नहीं है कि मैक्सिमम जो वैल्यूज मिल रही है वो सिमिलर नहीं है, दे आर देन अबव प्रोग्राम और अबव थिंग्स विल गेट रन। अगर ऐसा नहीं है, मीन्स दोनों भी इक्वल है, इन दैट केस हमें ये आगे वाला प्रोग्राम रन करना है। रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, फाइंड द मिनिमम ऑफ द मैट्रिक्स, आई एम सॉरी मैंने कहाँ पर किया, हाँ यहाँ पर एल्स, ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देन वी आर आइडेंटिफाइंग द रो मैक्स, वी आर असाइनिंग दैट टू इंडेक्स। देन C1 कॉस्ट जो है वो हम असाइन कर रहे हैं एंड इन एवरी स्टेप इफ़ यू आर लुकिंग इनटू, हम इंडेक्स असाइन कर रहे हैं, मीन्स पोजीशन कॉलम की एंड रो की असाइन कर रहे हैं एंड वी आर असाइनिंग दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स, करेक्ट, एंड वी आर प्रिजर्विंग अवर आइदर रोज और कॉलम। अगर कॉलम के वाइज जा रहे हैं तो हम रो प्रिजर्व कर रहे हैं, हम रो वाइज अगर जा रहे हैं तो कॉलम प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस एंटायर प्रोग्रामिंग और कमांड्स आर सिमिलर टू ईच अदर, सिर्फ रो एंड कॉलम में चेंज हो रहा है, जैसे हमारा यहाँ का एलोकेशन चेंज होता है। इफ इट इज रो वाइज देन प्रिजर्व कॉलम वाइज, इफ इट इज कॉलम वाइज देन प्रिजर्व रो वाइज। सो ट्राई टू चेक आउट दिस एलोकेशन। इफ C1 इज लेस देन और इक्वल टू C2 दीज कमांड्स विल गेट रन, क्योंकि C1 एंड C2 ये जो है हमारी कौन सी कॉस्ट है, रो की मिनिमम कॉस्ट है, एंड यहाँ पर C2 जो है वो हमने कहाँ पर फाइंड आउट की है, एक ही मिनट, C1 इज द रो 1 कॉस्ट एंड C2 इज द रो 2 कॉस्ट, रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 कॉस्ट। सो यहाँ से अगर ये लेस देन है तो हम ये रन करेंगे, नहीं है तो ये वाली जो कमांड्स है वो रन हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप यू कैन चेक इट आउट कि हमें यहाँ पर पोजीशन वाइज और रो वाइज क्या मिल रहा है। सो दिस इज CR CC, यू कैन लुक इनटू हर एक कमांड के आगे। वैसे जब हम मैथलैब की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हर एक कमांड के आगे ना हमें ये सेमी कोलन देना चाहिए, सो दैट दिस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन विल नॉट डिस्प्ले इन कमांड विंडो। लेकिन मैंने यहाँ पर कहीं पर भी सेमी कोलन नहीं दिया है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर कमांड रन होके मुझे मिल क्या रहा है एंड हाउ दैट लॉजिक इज फ्लोइंग। सो ट्राई टू गो थ्रू विथ ऑल द लॉजिक्स ओवर हियर, एंड जैसे आपकी कॉस्ट फाइनलाइज होती है
वैसे उस पोजीशंस पर कॉस्ट मैट्रिक्स के INF इन्फिनिटी या इन्फ्रीमम इस वे में INF हम यहाँ पर डाल के रख रहे हैं, सो दैट पोजीशन विल गेट ब्लॉक एंड फर्दर लूपिंग में वो पोजीशन हैंडल नहीं होगी, यूज़ नहीं होगी. सो यू कैन लुक इन टू दिस कमांड विंडो. यहाँ पर जैसे जैसे हम मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, यहाँ पर देखो आपके कॉस्ट मैट्रिक्स चेंज हो रही है. यहाँ पर आपके पास फर्स्ट इन्फ्रीमम आ गया एंड द रेस्ट ऑफ पोजीशंस आर ओपन. सिमिलरली कॉलम वाइज रो वाइज यहाँ पर फिर से रिकैलकुलेट हो रहा है एंड वी आर गेटिंग द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल लूप्स विच आर वैरिंग फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to 12. जितने नंबर्स की पोजीशन है हमारे उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये पूरा लूप जो है वो रन हो रहा है and you are going to get the final allocation here. C max, it's empty double row vector, empty double vector. एक ही मिनट. हमारा पूरा कॉस्ट मैट्रिक्स इन्फ्रीमम में चेंज हो जाएगा once we complete this part. Yes. See this. पूरा कॉस्ट मैट्रिक्स आपका इन्फ्रीमम में कन्वर्ट हो चुका है. दैट मीन्स ऑल द अलोकेशंस इन टर्म्स ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वी कुड ऑब्टेन. सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा विद दिस मैट्रिक्स, जहाँ पर अलोकेशंस हमारे पास है. And these are the same allocations which we are having. So let us check out. It's 45, 30, 25 आ गया, 80, 45 and this is 75. So though we have started with any random choice of 2, we are going to get the same solution over here. And this is equal to 6. तो यहाँ पर हमें सिंप्लीफिकेशन भी मिला कि ये नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन है, राइट. एंड कॉस्ट कैलकुलेट होके आई है 695. सो सेम प्रोग्राम हम किसी नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन के लिए करके देखते हैं. सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस प्रोग्राम एंड लेट अस पेस्ट दैट समवेयर एल्स. ओके, लेट अस सेव दिस. दिस इज द VAMP प्रोग्राम 2. हमने सेव कर दिया है. नाउ व्हाट वी हैव टू चेंज इज दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो LCM में जो हमारा मैट्रिक्स था ना वो हम यहाँ पर लेते हैं, विच इज़ अ अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम एंड यहाँ पर डीजनरेट सॉल्यूशन हमें मिल रहा था. सो आई जस्ट चेंज इट, आई सेव इट वंस अगेन एंड लेट अस रन नाउ दिस प्रोग्राम. देखो ये पूरा प्रोग्राम VAMP 2 का कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर. एंड फाइनली आई एम गोइंग टू गेट द इनिशियल कॉस्ट एज 1160. ठीक है. सो हम चेक करते हैं स्टार्टिंग से. ये है आपका कॉस्ट मैट्रिक्स. कमांड विंडो में आप देखो सब. देन दिस इज द कंक्लूजन. गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड, करेक्ट. देन ये अनबैलेंस्ड है इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कॉलम ऐड हो गया 0 0 का. एंड अगेन द सेम प्रोग्राम इज फॉलोड विथ ऑल द वैल्यूज. अब हमारे पास है 3 into 5 15 पोजिशंस. सो हर एक पोजीशन के लिए पूरा लूप जो है फॉर लूप वो अच्छे से रन होगा. एंड आई एम गोइंग टू गेट द फाइनल कॉस्ट मैट्रिक्स विद ऑल इन्फ्रीमम एंट्रीज विच गिव्स अस द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल टू m+n-1. सो देखते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशंस मिलते हैं क्या. बिकॉज ऑफ ऑल दैट जीरोज इन द लास्ट कॉलम आई मे नॉट गेट हियर द नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस इक्वल टू m+n-1. तो यहाँ पर m+n-1 कितना आता है 7. एंड मुझे यहाँ पर 7 सॉल्यूशंस मिलने चाहिए. सो लेट अस चेक आउट लास्टली हमें मिलता क्या है यहाँ पर. सी हियर दिस इज द IFBS. तो ये जो मैट्रिक्स है वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एलोकेशंस मुझे यहाँ पर मिल गए. सो 7 एलोकेशंस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं. एंड दिस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉन डीजनरेट. तो यहाँ पर हमें 11 and 60 ये वैल्यू मिल भी गई. सो यू कैन ऑब्जर्व ये जो LCM हमने कल सॉल्व किया था
यहाँ पर हमें डीजनरेट सॉल्यूशन मिला था, एम आई राइट। एंड यहाँ पर वैल्यू देखो, जो वैम की वैल्यू है ना, वैम प्रोग्राम रन करने के बाद ये आई है 1160। तो LCM के साथ ये वैल्यू क्या आती है, एक बार चेक करते हैं इसे रन करके। यहाँ पर आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन डीजनरेट मिला था, मीन्स एक वेरिएबल की वैल्यू आपको नहीं मिल रही थी, करेक्ट, जो कि वैम में हमें मिल रही है। एंड द टोटल कॉस्ट यू कैन चेक आउट इज 1290 एंड वैम में हमें ये वैल्यू मिली है 1160। सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए कौन सी मेथड बेटर है, LCM है, वैम है या NWCM है, ये कंक्लूजन आपको तीनों भी प्रोग्राम करके फाइनली लिखना है एज अ कंक्लूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो ये आपको असाइनमेंट में लिखना है, am I right? Okay, so this is about the WAM method and NWCM method as well. So यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज़, else the entire things I explained properly। ये पूरे प्रोग्राम भी मैंने आपको सेंड करके रखे हैं। So matter is just to check out your problem, what answers you are going to get and write down the conclusion. So part is very simple। मैं क्वेश्चन बैंक भी आपको शो करके रखती हूँ। टोटल 6 to 7 क्वेश्चंस आई इंक्लूडेड हियर एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर दीज, लेट मी एक्सप्लेन। राइट अ MATLAB प्रोग्राम टू डिटरमिन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग आइदर LCM मेथड और NWCM मेथड और WAM मेथड। तो आपको ये सिंगल टेबल जो है उसके लिए आप तीनों भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। सो एग्जाम में इन तीनों भी मेथड से आपको MATLAB प्रोग्राम लिखने के लिए बोला जाएगा टू गेट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, तो आपको यहाँ पर लॉजिक लिखना है। वैसे ये पूरा प्रॉब्लम आपको मिनिमम 10 या 10 मार्क्स के लिए पूछा जाना चाहिए, बट विल नॉट आस्क यू दिस मच लेंदी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रामिंग पूरी याद रखना, लॉजिक याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम इस टाइप के प्रॉब्लम को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। सो कैसे ब्रेक करेंगे हम, सी दिस फोर्थ प्रॉब्लम। राइट द MATLAB प्रोग्राम टू डिटरमिन वेदर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 1, 2, 3 मीन्स ऊपर के जो 3 प्रॉब्लम्स है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, एंड इफ नॉट बैलेंस्ड कन्वर्ट इन बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के लिए किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए। चेक आउट वेदर इट इज़ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड एंड इफ नॉट बैलेंस्ड कन्वर्ट इट इनटू द बैलेंस्ड प्रॉब्लम। सो इसके लिए प्रोग्रामिंग जो आपको लिखनी है वो बहुत ही सिंपल सा पार्ट लिखना है यहाँ से, इस पूरे प्रोग्राम से, एंड दैट आर हार्डली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 लाइन प्रोग्राम। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो इस टाइप का प्रोग्राम आपको 4 to 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, राइट। Or another type of question we may ask, write the coding in MATLAB program to allocate the values of basic feasible solution if transportation problem is balanced। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है तो आपको इस पूरे प्रोग्राम में यहाँ तक स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ये सारी स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे वाला लॉजिक आपको लिखना है। कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक आप इसे अलोकेट कर रहे हो, मीन्स ये जो प्रिंट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है उसके पहले वाला टाइप, तो यहाँ तक आपको पूरी प्रोग्रामिंग लिखनी है। वी मे आस्क दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर 6 मार्क्स, करेक्ट। यूज द लॉजिक ऑफ लिस्ट कॉस्ट मेथड। तो ये कुछ 2-4 प्रोग्राम्स से जो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, उस टाइप के प्रोग्राम्स हम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए पूछ सकते हैं, ओके। Is that method and entire things of MATLAB are clear to everyone? If you are having any doubt, please ask. Question to anyone? Please can you give us just 1 or 2 days extra to submit the project? Okay, till 3rd you can submit.
See, Rahi, it's not very difficult, beta, because I sent you already all the 3 programs. So whatever number of questions we are going to give you, like this question, you have to just put up these values in that program and you have to run that. वो solution या output जो आता है वही आपको place करना है. It's not actually a big stuff, but still we can extend that to 3rd of June. तो 3rd of June तक आप submit कर सकते हो. Yeah, ma'am, but because today we have incidentally given 2 more submissions to submit it by tomorrow itself, so we're just asking for 1 more extra. Okay, no issues. On 3rd you can complete your submission of this assignment as well. Thank you, ma'am. Okay. Yes. Anybody else? Do you have any doubt? Ma'am, can you send recording of this session? Yes, yes. The prior recording also I uploaded and I sent you on our WhatsApp group. This recording also I'll upload today itself. Thank you. Okay. But yeah, this task is bit difficult. You may feel it as difficult क्योंकि यहाँ पर ये पूरे steps याद रखना ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा important है. Maybe the computer and IT people may remember it because you are dealing with the programming like stuff. So it's not very difficult for you. But for the rest of people who are not yet efficiently doing the programming like civil students or ENTC students or mechanical students, you need to do little bit more struggle to remember all that programming part. So please have hands-on of this programming structure in MATLAB in online mode. It will be beneficial for you. Try to remember the logic so that it will be easy for you to remember the sequence of the coding also or syntax also. So please remember that part. Like this find command, we don't have any alternative to find. Now instead of this column 1 you can use another thing, but for Rmax of the row index this must be similar. JJ, for this you can use another name. x11 की जगह आप another use कर सकते हो. So wherever we are assigning you can change the variables, but whenever they are syntax like max of x11, this is syntax that you cannot change. Correct? So cost वाला जो मैट्रिक्स है आप अलग नाम से दे सकते हो ना. कॉस्ट मैट्रिक्स की जगह प्राइस मैट्रिक्स दे दो, प्राइस दे दो यहाँ पर चलेगा. बट द वे वी राइट डाउन द सिंटेक्स शुड बी सिमिलर विच इज देयर इन मैटलैब. करेक्ट? ओके. लाइक ये कमांड भी एफ प्रिंट एफ पाइथन में या फिर आर प्रोग्रामिंग में ये कमांड डिफरेंट वे में दी है. ये इन्वर्टेड कॉमास भी जो दिए हैं वो डिफरेंट वे में दिए हैं. स्लैश एन इज यूज फॉर द न्यू लाइन. एरे टू टेबल ये वाली सिंटेक्स जो है कमांड की ये सिमिलर है. किसी भी मैट्रिक्स के लिए एरे टू टेबल मीन्स हम यहाँ पर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को एरे फॉर्म में कंसिडर करें. वी आर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई दिस. सो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम. ये 3 प्रोग्राम आपको बहुत इफिशिएंटली करने हैं क्योंकि 3rd वाला जो यूनिट है हमारा, जहाँ फिर से मैटलैब का यूनिट था वो, जहाँ पर हमने कौन से सिंप्लेक्स मेथड की प्रोग्रामिंग पढ़ी है विद द लिन प्रोग्राम फंक्शन, एंड दैट प्रोग्राम इज ऑल्सो जस्ट ऑफ 10 लाइन्स. एंड बहुत सारे लोगों ने ये MT में अच्छे से प्रोग्रामिंग की थी लिन प्रोग्राम फंक्शन की, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है. स्ट्रेट वे एक लिन प्रोग्राम एंड ऑप्टिम ऑप्शंस नाम का एक फंक्शन आपको यूज़ करना है विद द प्रॉपर सिंटेक्स, तो आपको फुल मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे. लेकिन अगर कुछ भी गलती होती है सिंटेक्स में तो ऑब्वियसली योर मार्क्स विल गेट डिडक्टेड एट दैट पॉइंट. सो ये वाला पार्ट जो हम थ्योरी एग्जाम में भी पूछने वाले हैं, असाइनमेंट के फॉर्म में भी हम अब ले रहे हैं. यू हैव टू प्रिपेयर बिट केयरफुली. ऑलराइट? ओके. सो प्रिपेयर वेल एंड सबमिट assignment by 3rd of June. Probably we'll try to complete the entire submission part in this week only for the defaulter students as well as for the regular student, so that from next week you will be free for your preparation. So be particular for the same. Like the other subject, the submission for open elective is also very important, and I'm preparing one sheet where
your performance throughout the semester for IE1 part A, part B, MTE, IE2 part A, part B. I'm going to sum up, right, and that summation will be out of 50. So please make sure that you are checking out that particular performance of your throughout the semester, and you are preparing well for the ET examination as well. So do take care of all these things. Okay, let's just stop over here.